Jyoti Ganwasi, wife of late BSP candidate from Karnaprayag, Kuldeep Ganwasi, filed her nominations from Karnaprayag on BSP ticket. Voters of Karnaprayag will be inked on 9th March. Congress handed over a memorandum to Chief Electoral Officer Radha Ratori over delay in action against BJP. EC has issued a notice to BJP regarding PM's campaign rally in Haridwar. Bitter truth of Doon Government Hospital's parents have to bring syringe and other medicines for their infant first vaccination. Forest Department of Roorkee under scanner. Woodcutters cut down 22 trees. Forest Department trying to hide the matter. Patanjali made turmeric powder filed in test. Food Security Department lodged a case against Patanjali in ADM's court. Good evening, I'm Sakshi Sehwal and you're watching HNN 24/7. Jyoti Ganwasi, wife of late BSP candidate from Karnaprayag, Kuldeep Ganwasi, wife filed her nominations on Karnaprayag seat from BSP ticket. After the nominations, Jyoti Ganwasi said that she will fulfill her husband's dream of developing Karnaprayag. On 12th of February, Kuldeep died in road accident, and after his death, Election Commission rescheduled the polling date for Karnaprayag seat, which is on 9th March. Election Commission also asked BSP to give a candidate from Karnaprayag till 20th of February. मेरे पति का सपना था, जो भी उनके अधूरे काम है वो पूरा करूंगी, बस मुझे यही बोलना है। बिल्कुल, मुझे पता है 36 लोग मेरे नाम रखेंगे। अभी मेरे चलने पे, मेरे पहनने पे, मेरे बोलने पे लोग नाम रखेंगे। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे अपनी फैमिली से मतलब है। मेरे सासुर में सपोर्ट करेंगे, मेरे माँ बाप हैं, मुझे उनसे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। मुझे मेरे साथ वो हैं तो सारी दुनिया मेरे साथ है। बस मुझे यही कहना है कि कुलदीप गणवासी को हमने टिकट दे करके, उस जवान आदमी था, तेज आदमी था और जुआ वर्ग था। जुआ वर्ग में लोग आते हैं, तो हम पहले उत्तराखंड में हमें पूरा युवाओं को हमने मौका दिया। उसमें एक कणवासी थे। इनके जाने के बाद से पूर्ण क्षति हुई है पार्टी को। और जैसे चुनाव आयोग का आदेश हुआ तो सब प्राथमिकता के आधार पर मैंने सोचा कि आदरणीय हाईकमान के आदेश के अनुसार, हाईकमान का आदेश हुआ कि पहले उनको घर जाकर उनके दुख संवेदना व्यक्त की जाए और उनसे अपना बात रखी जाए। अगर उनके परिवार के, उनके बच्चे या उनके पिताजी कोई तैयार हो जाए। Although the polls have ended, but the blame game still continues. BJP's temperament seemed to be heated up on CM's file disposal at the Secretariat during the Model Code of Conduct. The Saffron Party is demanding that the file, which have been disposed of by the CM Rawat, should be made public. Party State President Ajay Bhatt questioned the step taken by CM and said that the disposal of files by Harish Rawat at a time when the state is under Model Code of Conduct is not justificable. He also spoke that raising his voice against this issue in the Election Commission. Commenting on BJP's statement, Congress said that it is BJP who has been involved in filed disposal. इसलिए इस इतने पवित्र लोकतंत्र के इस पर्व में भी कांग्रेस ने जिस तरह से आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई, इसका उदाहरण देश भर में कहीं नहीं मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूछना चाहता हूं मैं कांग्रेस की सरकार से कि ये पीके कौन है? हमसे तो आप कहते हो 200 करोड़ 250 करोड़ रुपए लगा दिया। ये प्रशांत किशोर को किसने बुलाया और आपने कितने में ठेका दिया था? पहले आप साफ करें। और उनकी लगभग 100 गाड़ियों को बिना रोक टोक के प्रदेश में जाने की इजाजत किसने दी? कैसे 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 ऐसा आदेश कर दिया? और आदेश करने वाले अधिकारी जो आपके परिवहन विभाग के ही एक बड़े अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं,
सेवानिवृत्त होने से 3 महीने पहले सेवा विस्तार दे दिया, ऐसा कहीं नहीं पाया गया। और जिनमें नियमों को शिथिल किया गया तो नियम विरुद्ध हैं, आखिर ऐसे करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने आचार संहिता लगने से पहले 10 दिन में नियम विरुद्ध कम से कम 100 लाइसेंस खदान के परमिट दे दिया आपने, और बार के कम से कम 56 आपने लाइसेंस दिए हैं। ठिकाने लगाने का काम तो भाजपा जो है भली भांति जानती है। 2012 में उन्होंने क्या किया उसका अनुभव उनको रहा होगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि जब वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो मैं सोच रहा था कि राज्यपाल जी के पास नेता प्रतिपक्ष जी का इस्तीफा आ गया होगा, क्योंकि वो भी तो जो है वो संवैधानिक पद पर हैं, उसके अनुसार जो है काम कर रहे हैं। अब जब उनका इस्तीफा आ जाएगा तो तब इस पर मैं कुछ। Even though the polls have ended, political fever is still high in the state. Tension are increasing on PM Modi's rally in Haridwar on 10th of February. Congress has targeted the Election Commission on the matter of Narendra Modi organizing a rally in Haridwar without any prior permission. The Congress delegations headed by party state president Kishore Upadhyay met with the chief election officer Radha Raturi, where Upadhyay demanded to file a case against PM Modi. The board has submitted the memorandum to the EC regarding delay in taking actions on the matter. कांग्रेस पार्टी का निर्वाचन आयोग पर, यहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर पूरा भरोसा है, और हमने निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन अधिकारी जी को, और जितने भी इस चुनाव के अंग रहे, तब चाहे मतदाता रहा, अधिकारी रहे, मतदान पार्टियां रही, जनता रही, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जितने भी राजनीतिक दल रहे, हमने उनको धन्यवाद दिया है। शांतिपूर्ण चुनाव जो संपन्न हुआ। लेकिन 10 फरवरी को हरिद्वार में बिना सभा की अनुमति के प्रधानमंत्री जी आए और वहां आकर के सभा को संबोधित करके चले गए बिना अनुमति के। राहुल गांधी जी और माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के खिलाफ थोड़ा समय ज़्यादा हो गया था, जो रोड शो था, तो हमें तो जो है नोटिस मिल गया, मुकदमा दर्ज हो गया, और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें जो वरिष्ठ भाजपा के नेता थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से ये मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आदर्श आचरण। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आया था, अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे। उन्होंने एक मामला उठाया है जो 10 तारीख को हरिद्वार में प्रधानमंत्री जी की एक रैली हुई थी। उसके संबंध में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उस रैली की परमिशन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको विधिवत नहीं दी थी। अब पार्टी का अनुरोध है कि ये मामला चुनाव आयोग को भेज दिया जाए। तो हम लोग इस मामले को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज देंगे और ज़िला निर्वाचन अधिकारी से भी हम लोग इस संबंध में रिपोर्ट मांगेंगे। स्ट्रॉन्ग रूम्स को लेके बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कल मेरी सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों, सभी पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस पे बहुत डिटेल में वार्ता हुई है, और सभी स्ट्रॉन्ग रूम में 3 चक्र सुरक्षा के रहेंगे। जो इनर कॉर्डन है उसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा, जो बीच वाला कॉर्डन है उसमें स्टेट का आर्म्ड फोर्स रहेगा, और जो तीसरा कॉर्डन है उसमें स्टेट की सिविल पुलिस रहेगी। सभी स्ट्रॉन्ग रूम्स के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। सीसीटीवी कैमरे के लिए कंट्रोल रूम्स भी बने हैं जहाँ पे 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग होगी, और जो स्ट्रॉन्ग रूम्स में ताले लगे हैं और जो Congress is taking stern actions on discipline after the assembly polls. The party is now kicking out the activists who have been working against the party official candidate. And in this series, 29 party workers who were campaigning against the party from the Sehespur constituency have been suspended for 6 years. All these activities have been alleged of supporting Arendra Nagar Sharma. निश्चित तौर पर जो शिकायतें जहाँ से भी आएंगी
और जिन कार्यकर्ताओं ने या जिन पदाधिकारियों ने पार्टी के विरुद्ध काम किया, निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उनको निष्कासित कर दिया गया। और समय समय पर पूरे प्रदेश से जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनकी शिकायत आए जिलाध्यक्षों के माध्यम से, तो हमने उन पर कार्रवाई करते हुए तत्काल उनको पार्टी के से Congress State President Kishore Upadhyay has once again claimed the party victories in this assembly polls. Kishore Upadhyay said that the state public seems very happy with Congress. This shows that the people have once again voted in favor of the party and that this time is the party is going to form its government with full majority. When questioned about defection, Upadhyay said that BJP has tarnished the reputation of the state and that the public will punish the Saffron Party for its wrong deeds. नहीं, मुकाबला तो कहीं नहीं था, भाजपा कहीं थी नहीं, क्योंकि जिस तरह से उनका प्रचार था, उन्होंने उत्तराखंड की जनता का और विशेषकर आंदोलनकारियों का बड़ा अपमान किया जब उन्होंने कहा कि अटल जी ने बनाया। अरे ये उत्तराखंड की जनता ने राज्य बनाया है। जब उन्होंने कहा कि मोदी जी संवारेंगे, अब उस पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए थी कि क्या प्रधानमंत्री जो हैं मुख्यमंत्री के रूप में काम करना चाहिए। After the state elections, the EVMs have been kept in the strong room of all the district headquarters. Our correspondent Nasir Hussain had a one-to-one conversation with the IG Law and Order Dipan Seth about the security arrangements made for the EVMs. उत्तराखंड में मतदान संपन्न होने के बाद तमाम जगहों पर जितने भी ज़िले हैं स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं और तमाम जो ईवीएम हैं वो उन स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई है। अब सबसे बड़ी जो अहम जिम्मेदारी है वो पुलिस की है और पुलिस ने उनके क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपम सेठ जो अपराध एवं कानून व्यवस्था के आईजी हैं। दीपम जी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? जो ईवीएम रखी गई हैं खास तौर पर किस तरह की लेयर सुरक्षा वहाँ पर दी गई? देखिए, प्रत्येक जनपद में ईवीएम्स को रखे जाने के लिए जो स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए गए हैं वहाँ पर 3 लेवल्स की 3 टायर सिक्योरिटी वहाँ पे सुनिश्चित की गई है। जो पहला लेवल है वो जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके 2 प्लाटून्स हर जनपद में इस कार्य के लिए इयमार्क किए गए हैं। जो पहला टायर सिक्योरिटी का सीएपीएफ के द्वारा रहेगा। उसके बाद जो दूसरा सुरक्षा घेरा है वो पीएसी के एक प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में एक गार्ड वहाँ 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगातार 24 घंटे रहेगी। और तीसरे लेवल पे जो जनपद का अपना पुलिस बल है वो एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में ये भी 3 शिफ्ट्स में 24 घंटे वहाँ पे रखा गया है। सारे जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं और जो पूरा परिसर है वो सीसीटीवी के कवरेज में रहेगा और लगातार सीसीटीवी की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त अग्निशमन की व्यवस्था, एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की, ये सारी व्यवस्था वहाँ की गई हैं। और पूरे सुरक्षा प्लान के एक राजपत्रित अधिकारी वो एक नोडल ऑफिसर के रूप में वहाँ पर रहेंगे 24 घंटे। और डीएम्स और एसपीज भी स्वयं और अपने नामित अधिकारियों के द्वारा समय समय पे इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की चेकिंग भी करेंगे। और अधिकारियों का वहाँ पे जो आवागमन रहेगा, उनका आने का जाने का समय और जो उनके आने का प्रयोजन है वो सब वहाँ पे रखी लॉग बुक्स में वहाँ पे इंद्राज किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से जो फोर्स लगाई गई है, क्या आपकी स्तर से भी कोई मॉनिटरिंग वहाँ पर की जाएगी? जी हाँ, हम लोग डायरेक्टली प्रत्येक दिन और दिन में 2 बार सभी जनपदों के जो वहाँ पर नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा सीधा हम उनसे सीधे संपर्क में हैं और उनके हर शिफ्ट की जो वहाँ पे कुशलता की रिपोर्ट है वो लगातार पुलिस मुख्यालय में दूरभाष से भी और वायरलेस के माध्यम से प्राप्त की जा रही है और उसका एक रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और पुलिस खास तौर पर जिस तरीके से 3 लेयर सिक्योरिटी वहाँ पर लगाई गई है जिसमें बीएसएफ है, आर्म फोर्स है और उसके बाद सिविल पुलिस है, ये तमाम लोग इस पर फोकस रखेंगे और जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार इसका जायजा लेते रहेंगे। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ नासिर हुसैन, HNN 24/7 देहरादून।
The flaws in Doon Hospital's women block are being exposed by layer. The ANM of Women's Hospital is only questioning the functioning. According to the ANM, the administration provide about 200 syringe once in 2 months for the BCG vaccine given to the newborn. Out of these 200 syringe, more than half of them are of no use, then the remaining ones are used for vaccination. But in spite of that, the new syringes have to be brought in from outside the hospital. The sad part is that the quality of syringes provided by the administration is also not good. बस हम तो डिमांड दे सकते हैं, हमने प्रिंसिपल को डिमांड दे रखी है, हम तो यही कर सकते हैं, डीजी को डिमांड दे सकते हैं, हमारा काम है डिमांड देना, उपलब्ध कराना ना कराना ये प्रिंसिपल का काम है, ये डीजी का काम है। बाहर से सिरिंज तो अभी तक तो नहीं मंगाई जा रही, अब इस बारे में अगर मंगाई जा रही तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो कैमरे के भी हैं, जो कैमरे लगाने हैं उसकी एएमसी और सीएमसी होनी थी। एएमसी सीएमसी का पैसा प्रधानाचार्य महोदय को दिया गया है, ये जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की बनती है कि वो एएमसी सीएमसी करा के और कैमरों को ठीक कराएं। हम कई बार प्रधानाचार्य को अवगत करा चुके हैं, कई बार लिख चुके हैं। ये अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है, ये प्रिंसिपल का अधिकार क्षेत्र है। इस बारे में जो भी The native of Bageshwar Nandi village are displeased with rumors about opening of a beer bar in the village. The opposed the beer bar women of the villages reached the collectorate and submitted a memorandum to the DM. They have expressed their concerns by saying that there are 2 schools and a temple situated on the site which is chosen for the beer bar, and that the women and students will have to face problem with the beer bar opening. सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी निर्देश दिए हैं कि नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से जो दूरी का निर्धारण किया हुआ है, लेकिन अगर गांव की तरफ भी इस बार या इस तरह की शराब की दुकानें आती हैं तो उसमें भी नियमावली के अनुसार कई सारे प्राविधान हैं कि मंदिर से उसमें निश्चित दूरी होनी चाहिए और स्कूल से दूरी होनी चाहिए, अस्पताल से दूरी होनी चाहिए, वो सभी मानक तो बने रहेंगे। तो इसीलिए इस मामले में भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार वो ये शिफ्ट करने। SSP Janmejay Khanturi did a surprise inspection of Ramnagar police station. During the inspection, many shortcomings were noticed in the police administration. The police station in charge and the other police personnel were reprimanded with the records. Arms of the sheets of history sheeters of the police stations were not right. SSP has also released a decree to close all the pending cases as soon as possible. कि आज वार्षिक निरीक्षण था तो मेरे द्वारा जितने भी थाने के अभिलेख हैं उनको देखा गया। इसके अलावा जितना भी थाने में जो भी सामान हमारे द्वारा दिया गया है उसका निरीक्षण किया गया। इस दौरान ये पाया गया कि वेपन हैंडलिंग में हमारे सिपाही और दरोगा इनमें थोड़ी खामियां हैं जिसको कि दूर किए जाने की ज़रूरत है। इनको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है जिसके लिए कि मेरे द्वारा RI को बताया गया है कि एक स्पेशल ट्रेनिंग चलाई जाए जो कि वेपन हैंडलिंग से संबंधित हो। इसके अलावा कुछ वेपन्स की हिस्ट्री शीट नहीं थी थाने में, तो वो हिस्ट्री शीट उपलब्ध कराने के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो हमारे अभिलेख हैं उनको आध्यात्मिक रखने के लिए मेरे द्वारा SHO को निर्देश दिए गए हैं कि जितने The 14 and 21 wards of the Haldwani city are flooded with the garbage. The localites have alleged the Nagar Nigam and the cleaners of not taking care of the cleanliness of the wards. The ward councillor are also not paying any heed to the problem being faced by the public. Possibilities of raising health problems is increasing with the increase in the amounts of garbage. Call it negligence of Roorkee range forest officers of some other issue, but the government forest state that being exploited by the timber mafias. A case of wood smuggling comes in from Roorkee, Ibrahimpur, where the timber mafias cleared off the valuable care tree standing in the government land at the polling night. It is not the first time that the mafias has exploited the wood under the government's property. गोभी डाल के लेके गए। कभी सुबह ऐसा होता है कि उस दिन 100 तारीख को सब लोग पुलिस वाले भी सब सीधे तक रात भर की चुनाव की उसके बाद से उससे यानी ये आपने पहचान कर ली गोभी डाल के। हाँ ये तो गोभी के पत्ते वाले दिखाई दे रहे हो वहाँ पर। गोभी डाल के मतलब गोभी की सब्जी लकड़ी के ऊपर से सब्जी डाल देते हैं। गोभी की सब्जी लेके जा रहे हैं। हम लोग तो राजे बात में हायर अथॉरिटीज की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आप बाइट मीडिया को मतलब हायर एक तुम्हारा प्रोटोकॉल हो गया शासन की ओर से है कि पहले क्या होता है कि हर जगह कहीं सिपाही बयान देता आपको देता तो ये हुआ कि जो जिम्मेदार अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो तुम्हारा कंट्रोलिंग अधिकारी होगा वही तुम्हारा रुड़की वालों के लिए समस्या हो जाएगी। 22 पेड़ है सर, 22
तो पहले 11 पेड़ बता रहे थे वो। कल मेरी बात हुई थी उनसे, कल 11 ही बताए। जो बीट देखते हैं ना वहाँ कल 11 ही बनारक्षी है, वो 11 बता रहे थे। ये अभी तो हम भी कह रहे हैं कि कुछ पेड़ को तो ऐसा कंफर्म नहीं होगा कि ये पेड़ कल के कटे हैं या पहले के कटे हैं मौके पर लेकर, लेकिन ये कि हमारे जो Joshimath NH58 is not in a good condition. The whole street has been transformed. क्या हो रहा है गणित? गुड न्यूज़ है कि नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जोशीमठ टीसीपी सिंघार से लेके और राजकीय इंटर कॉलेज तक जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं। इसकी दुर्दशा है। इस ओर जो है। Now quick view on today's highlights. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan attended a mass teaching program held at his alma mater Sanjay Gandhi School to launch Mile Bache mass teaching program is being held in Madhya Pradesh. Understanding and being aware about the importance of voting, a bride named Manisha from Lucknow has decided to leave her husband's home only after casting the ballot on 19 February, which will mark the third phase of Uttar Pradesh Assembly elections. A government-run middle school with 3 teachers is running without any student in MP Agra Malwa district, Dakori village. The village has a population of around 1,000 residents and most of the children in the village have enrolled with private schools. Indian Army Chief Bipin Singh Rawat today visited AIIMS Trauma Center in National Capital to know about the whereabouts of Officer Chetan Cheetha, who was injured in the Bandiropan encounter in northern Kashmir. Last week, the officer has suffered multiple gunshot injuries and currently in a critical condition. While addressing a press conference in Uttar Pradesh, Gorakhpur district today, BJP President Amit Shah exclaimed that the coalition between SP and Congress is extremely heinous and shows that Akhilesh Yadav is afraid of facing any defeat in this upcoming elections. Former Member of Parliament from Nagpur, Jamro Vantaro Dahote passed away today morning following a cardiac arrest. His last rite will be performed on Sunday in Yavatamal, where he breathed his last. Popularity known as Lion of Vidarbha, Dot was a staunch proponent of Vidarbha. He founded BJP party in 2002. Argument broke out between media persons and police after they denied media entry into the Tamil Nadu Assembly premises. Today, high security barricading was seen deployed outside Tamil Nadu Secretariat ahead of the floor test in Chennai. Tamil Nadu is poised for yet another day of intense political activities as Paniswamy seeks trust vote in Assembly sessions to be begun at 11 p.m. The UDMF has asked the Nepal government to make amendment in the constitution before announcing dates for local elections. Prachanda government is making attempts to appease the disgruntled Madhya-based parties. BSP Supremo Mayawati today lambasted the BJP, saying that its leader do not have the right to ask for votes on moral grounds. She added that the Saffron party couldn't even project any of its leader as a CM candidate. Mayawati, who is addressing an election rally in Jhansi, also attacked Samajwadi Party, saying that it follows politicals of crime, communal disparities and corruptions. After a brief political drama in Tamil Nadu's legislation, newly sworn-in Chief Minister Edappa K. Palaniswamy won the vote of confidence in the State Assembly.
After winning confident vote in assembly earlier today, newly sworn in Tamil Nadu Chief Minister Edeppake Palaniswamy along with several AIADMK leaders paid full tribute to his late procedure Jayalalitha at her Marina Beach located memorial in Chennai. That's all in this English bulletin. For more updates, keep watching HNN 24/7.